Hello friends, good morning. I am Mukund Adao, PGT Physics, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Shankarnagar District, Nanded. Now friends, in today's class we are going to discuss about the very important quantity of the topic, that is the motion, that is velocity and acceleration. Now in previous periods we have seen the concept of distance, displacement and speed. Once again we can recall speed. What is the speed? Speed is nothing but it is distance covered या traveled per unit time. बरोबर है कि नहीं? That we have seen. Similarly here now we have to go for the two important quantities. One is velocity and another is acceleration. Okay. Now about the speed, we know speed is a scalar quantity. What is the SI unit of speed? Speed is measured in meter per second. Okay. Now we will see the concept of velocity and acceleration now in detail now. Now what are the points to be discussed now in today's class? The points which are to be discussed in today's class are: the first we are going to discuss velocity. Second point we have to discuss, that is the acceleration. And third we will see numerical examples just to understand the concept. Okay. Now one by one we will see. Velocity in bracket is written as speed with direction. That means we know speed, it is distance upon time. But if there is the direction to that speed, then it becomes velocity. Now the velocity can be defined. Displacement per unit time is called as velocity. Displacement per unit time, it is called as velocity. ये हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो स्पीड किस प्रकार डिफाइन किया था? इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. Distance per unit time, that is the speed, that was the speed. Now it is displacement per unit time. हमको पता है कि डिस्टेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी है, therefore डिस्टेंस अपॉन टाइम स्केलर, इसलिए स्पीड स्केलर है. बराबर है कि नहीं? नाउ वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी? इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. बराबर है कि नहीं? नाउ वी नो डिस्प्लेसमेंट इज ए vector quantity and therefore velocity must be also vector quantity. That is the reason why it is said here it is speed but with direction. बराबर कि नहीं? मतलब उसको डायरेक्शन होता है, वही ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. ठीक है. नाउ वी कैन हैव द फार्मूला as per the definition. Now it is displacement per unit time and therefore now we can have formula for velocity. Velocity is equal to displacement upon time. Now जैसा कि यहाँ पे बताया कि if the velocity changes with uniform rate, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक तो वेलोसिटी बढ़ती है या वेलोसिटी घटती है. बराबर है कि नहीं? मतलब उसका बढ़ने का या घटने का रेट यदि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, देन वी कैन डिफाइन एवरेज वेलोसिटी. द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. दिस इज सिंपली द अरिथमेटिक मीन. मैथमेटिक्स में जैसा मीन निकलते ना, तो फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. ये सिर्फ उसी केस में अप्लाई हो सकता है इफ द वेलोसिटी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट. यदि वेलोसिटी बदलने का रेट जो है बढ़ रही है तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही, घट रही तो एक कांस्टेंट रेट से घट रही. यदि वो रेट यदि कांस्टेंट है, उसी केस में एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज किया जाता है, अदरवाइज नो. ठीक है. तो स्पेशल केस में वी कैन डिफाइन द फार्मूला एज ए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. नाउ इन टर्म्स ऑफ फार्मूला हियर वी कैन पुट V average, that is the average velocity u plus v divided by 2. Now these are the standard notation. ठीक है. What is u? U is utilized for initial velocity, v for final velocity, बराबर कि नहीं, divided by 2. Okay. Now it is quoted here. What is that? Velocity is a vector. It is a vector quantity. जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि velocity is equal to displacement upon time and already it is declared. We have seen what is that? Displacement is a vector quantity और time scalar है. किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं ना, तो रिजल्ट भी क्या आता है? वेक्टर आता है. बराबर है कि नहीं? Therefore velocity is a vector. Now again we have defined one more new quantity, that is the velocity. It requires a unit. The SI unit of velocity is again meter per second or it can be written as meter per second. स्पीड का यूनिट यही है, क्योंकि वेदर इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्टेंस भी मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में नापते हैं और टाइम सेकंड में, इसलिए टोटल यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड और मीटर पर सेकंड. ओके. नाउ द सेकंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट term that we have to see now, that is acceleration.
अभी आपने एक्सेलरेटर ये वर्ड सुना होगा हमेशा, बाइक में, कार में, है कि नहीं, व्हीकल में, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेट करो? एक्सेलरेट करो मतलब इसका स्पीड बढ़ाओ, बराबर है कि नहीं। तो ये जो एक्सेलरेशन टर्म है, जो नाउन है, बराबर है कि नहीं। तो टू एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना, उसी से हमें यहाँ पे इससे मतलब पता चल जाएगा आपकी एक्सेलरेशन इज नाउ रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी। acceleration this term is related to change in velocity and therefore अभी हमने दो प्रकार की मोशन देखी है, वन इज यूनिफॉर्म मोशन, अनदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ ए टाइम बट देयर शुड बी सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये जब तक ये जो हम मोशन है ना, बहुत सिंपल केस में हम डिस्कस करें, मोशन इन वन डायमेंशन सिर्फ, है कि नहीं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक तो ओरिजिन के राइट में जाएगा, नहीं तो ओरिजिन के लेफ्ट में जाएगा, ये हम बातें कंसिडर करें, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में नो चेंज इन वेलोसिटी, और लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं। व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, एंड एज सुन एज देयर इज चेंज इन वेलोसिटी we have to introduce the term and that is called as the acceleration। इसलिए कहा है acceleration is the measure of change in velocity। what is this acceleration? it is the measure of change in velocity। यदि velocity change होती है तो किस प्रकार चेंज होती है, कैसी चेंज होती है, कितने अमाउंट पर चेंज होती है कि नहीं, हाउ मच एक्सटेंट वेलोसिटी इज चेंजिंग, बराबर है कि नहीं। बढ़ रही मतलब बढ़ रही तो कैसा उसको नापना है, तो उसका जो मेजर है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। इसलिए कहा है कि एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, नाउ वी विल डिफाइन द एक्सेलरेशन, वी विल हैव द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जैसा कि बताया कि एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, अभी चेंज किस प्रकार होती है उसका हमको रेट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। और वो जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज नोन एज acceleration। okay, now we will have the formula for now acceleration, therefore acceleration is equal to change in velocity divided by टाइम टेकन, बराबर है कि नहीं। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं, इतने टाइम में इतना चेंज, तो यूनिट टाइम में कितना, इसलिए हमको जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज का रेट है, इट इज रेट ऑफ चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी को यदि हम टाइम से डिवाइड करते तो टोटल क्वांटिटी बिकम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फार्मूला हियर नोटेशन में इसको पुट करते a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, है कि नहीं। इस फार्मूला में सारी क्वांटिटी स्मॉल है। v ऑलरेडी हमारे पास इसके पहले आया था, व्हाट इज द v? v इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी, u initial velocity, then this v minus u it is change in velocity। फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, इनिशियल वेलोसिटी इतनी ही थी, दोनों का यदि हम डिफरेंस लेंगे तो दैट बिकम्स ए चेंज, देयरफॉर v minus u it is a change in velocity divided by time and therefore now formula become a equal to v minus u by t। now it is very very important formula, you have to remember। okay, now जैसा कि मैंने बताया what is v? v का मतलब होता है it is a final velocity, u initial velocity। okay, now acceleration is a vector, it is a vector quantity just like a velocity, acceleration is also vector। ये रहना चाहिए क्योंकि we know that acceleration is equal to change in velocity upon time। अभी ये जो है टर्म इट इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। डिक्रीज हो रही कि इनक्रीज होगी, जो कुछ भी बचेगा दैट विल बी वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ SI unit, we have to search for now SI unit of acceleration। SI unit of acceleration is मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कैसा रीड करते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये फॉलो हो सकता है कैसे, क्योंकि नाउ किसके यूनिट लेने पड़ेंगे हमको, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी के यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय टाइम मतलब सेकंड, मतलब दो बार सेकंड आ गया, मतलब क्या होगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, मतलब इसको कैसा पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव साइन है, मतलब हमने ऊपर लिया। ओके, नाउ दिस इज द SI यूनिट। नाउ हियर देयर इज सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इट इज दैट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और जीरो।
एक्सेलरेशन तीन प्रकार का हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, या वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। उसके अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब जैसा बताया कि पहला एक्सेलरेशन, फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंडीशन इज देयर v इज ग्रेटर देन u। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v? v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी यदि इनिशियल वेलोसिटी से कैसी है, ज्यादा है, देन देयर विल बी ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस फार्मूला में देखो v माइनस यू अपॉन टी। नाउ इफ v इज ग्रेटर देन u, final velocity is greater than initial velocity, then surely this difference will be positive, v minus u divided by t, and therefore there will be positive acceleration. ठीक है। Second we have to see negative acceleration. We have to see negative. Surely negative acceleration कब हो सकता है? v is less than u. v is less than u मतलब वेलोसिटी लगातार क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। मतलब समझो गाड़ी की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर थी और कुछ वजह से गाड़ी की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई, बराबर है कि नहीं, फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस केस में v इज लेस देन u हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए ये जो डिफरेंस है v माइनस यू हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव डिफरेंस आएगा। और तब हम कहेंगे कि उस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन विल बी नाउ नेगेटिव। देयरफॉर इन दैट केस there will be negative acceleration when v is less than u. There are another names that is called as the deceleration. The opposite word of this acceleration that is called as the deceleration or retardation. ये वर्ड हमको मालूम चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा इस वर्ड का यूटिलाइजेशन होता है। Negative acceleration is also referred as deceleration or retardation. And now third, जीरो एक्सेलरेशन। जैसा हमने कहा कि 3 प्रकार के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, जीरो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। व्हाट डज दैट मीन? इफ v इक्वल टू u, v इक्वल टू u मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों कैसी है, बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो ये डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस हमको ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग देयर विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। अनदर वर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। और स्पेशल केस में जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। इसलिए कहा कि यदि हम यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करते हैं तो देयर विल नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। ये है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग हाउ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ओके, now to understand the concept, now here the first for average velocity and then average speed we will study one example. This example is example number 1. Now Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ठीक है, जर्नी पता होगी। 90 मीटर लॉन्ग पूल है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलॉन्ग, मतलब 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आ गई। ठीक है, हमको क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। नाउ वी हैव टू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। What is the formula? Average speed equal to total distance upon total time taken. इसलिए सबसे पहले हमको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। Therefore टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना दिया है, 1 मिनट थ्रू आउट द जर्नी, 1 मिनट, लेकिन ये मिनट इज नॉट एसआई यूनिट, देयरफॉर इट इज नाउ 60 सेकंड। देयरफॉर द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज एवरेज स्पीड इक्वल टू total distance covered upon total time taken. What is that? 180 upon 60. इसका यदि डिवीजन करेंगे तो क्या 3 का भाग जाएगा कि नहीं, therefore it becomes now 3 meter per second. Therefore in this example average speed is 3 meter per second. ठीक है, now second we have to calculate
एवरेज वेलोसिटी, बराबर कि नहीं. फॉर एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू सर्च फॉर नाउ डिस्प्लेसमेंट. What is displacement? 0 meter. Why 0 meter? Because she came back along the same straight path to the same destination. जहाँ से गई वही वापस आ गई. मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी क्या हो गई? मीट हो गई. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. Therefore in this case डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर. टाइम 1 मिनट, जितना वो है ना 60 सेकंड. एंड देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी 0/60 एंड विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपली हमने फॉर्मूला यूज किया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 0. therefore now the answer is average speed of Usha is 3 meter per second and the average velocity is 0 meter per second. ठीक है. Now we will study the second example. A bus accelerate uniformly from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 10 seconds. Calculate the acceleration. Now this example is based on acceleration. Initial speed कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर. वो क्या हो गई? एक्सेलरेट हो रही. कहाँ से? 18 किलोमीटर पर आवर टू 36. कितने समय में? 10 सेकंड में. देन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द क्वांटिटीज गिवन अकॉर्डिंग टू एग्जांपल. तो u हमको दिया है. अब स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u? u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर. ओके. अब ये 18 किलोमीटर पर आवर वर्क नहीं करेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर इज नॉट ए SI यूनिट. व्हाट इज द SI यूनिट? इट इज मीटर पर सेकंड. देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड. अब ये क्या करना पड़ता है? किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो और आवर के सेकंड बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करो. क्योंकि पहले 60 आवर के मिनट, फिर मिनट के सेकंड और इंटू 60. ठीक है. अब ये सब करने की हमेशा आवश्यकता नहीं. वो सब करने के बाद आप यदि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू विल गेट वन फैक्टर दैट इज 5/18. मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो. तो 18 इंटू 5/18, ये 18 निकल जाएगा. तो हमको क्या मिलेगा? 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो हमने अब सेकंड क्या दिया हमको? v. v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी. इट इज 36 किलोमीटर पर आवर. बराबर कि नहीं? इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 36 इंटू 5/18, ये 2 का इसको भाग जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा. देयरफॉर नाउ इट इज 10 मीटर पर सेकंड. थर्ड क्वांटिटी हमको क्या दिया है? t दिया है. बराबर कि नहीं? मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जांपल वी नो नाउ u, वी नो v एंड वी नो t. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. Therefore now we have to go for the formula. What is the formula? Formula will be a equal to v minus u upon t. अभी हमने देखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. सारी क्वांटिटी हमको SI में लेनी है. बराबर है कि नहीं? इसलिए v हाउ मच कैलकुलेट किया था हमने? 10 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10 सेकंड. ठीक है. कितना आता है? 10 minus 5/10 और कितना आएगा? 1/2. Finally it becomes a equal to 0.5 meter per second. Therefore this is the answer. बराबर है कि नहीं? That will be there. Now the acceleration of the bus. Okay. Now तो we have put it here the answer. ठीक है. Now we will study one more example. Example number 3. The bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. Find the retardation. ठीक है. Now the bus is decreasing its speed. शुरू में स्पीड कितना है उसका? 80 किलोमीटर पर आवर और बाद में कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर. और ये होने के लिए कितना समय लगा? 5 सेकंड. हमको रिटार्डेशन निकालना है. व्हाट इज द अनदर नेम? नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन. ओके. तो हियर अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नाउ हम देखेंगे क्या क्या हमको दिया है. तो फर्स्ट इट इज गिवन u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी कौन सी वेलोसिटी बन गई? इनिशियल वेलोसिटी बन गई. बट अगेन इट इज नाउ 80 किलोमीटर पर आवर. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. हाउ टू कन्वर्ट? 5/18 से मल्टीप्लाई करो. जैसा है कि नहीं? तो ये 2 का भाग जाएगा. 9 दूना 18 और ये 40 दूना 80. बराबर है कि नहीं? फिर 40 इंटू 5 कितना हो गया? 200. बराबर है. डिवाइडेड बाय 9. therefore 200 डिवाइडेड बाय 9. अब 9 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा. हम तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको ऐसे ही हम रख देते. इट इज 200/9.
meter per second. Similarly, second is there, what is 60 kilometer per hour, it is which velocity? Final velocity, therefore v equal to 60 kilometer per hour. इसको भी कन्वर्ट करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा डिवीजन, यहाँ पे 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 का डिवीजन गया, 6 का डिवीजन गया, 6 गुना 3 18 हो रहे, और ये 10 है कि नहीं, और ये 10 into 5 50 divided by 3, ठीक है. Therefore after simplification it becomes 50 divided by 3. Okay, now again let it be in this form itself, 50 divided by 3, क्योंकि और फ्रैक्शन आता है 3 से, बराबर है कि नहीं, तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये हमको फर्दर कैलकुलेशन के लिए लगता है. और टाइम अकॉर्डिंग टू एग्जांपल कितना दिया है, दैट इज 5 सेकंड. ठीक है, तो ये पूरी के पूरी एग्जांपल की समरी हो गई. यू हमको मालूम हो गया, वी हमको मालूम हो गया, टी हमको मालूम हो गया, और हमको एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन निकालना है. ठीक है, तो वी विल यूज आवर यूजुअल फार्मूला a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. पुट द वैल्यू, v कितना है हमारा 50/3 माइनस u कितना था 200 डिवाइडेड बाई 9 होल डिवाइडेड बाई 5, t इक्वल टू 5 सेकंड. ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. ये 50 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 9, इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, बराबर है कि नहीं. फिर 3 से 9 को डिवाइड करो, कितना आता है 3 से 50 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 150, माइनस ये 9 से 9 को डिवाइड किया 1 इंटू 200 देयरफॉर 150 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 9 और होल डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये माइनस 50 आएगा, 200 माइनस 150, लेकिन माइनस साइन 50, ये 9 जो है यहाँ पे चला जाएगा, ऑलरेडी 5 इधर है कि नहीं, तो माइनस 50/9 इंटू 5. अब यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 5 1 5 और ये 5 10, बराबर के 10 का भाग जाएगा इसको, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा अभी ये -10/9, बराबर की -10/9. ठीक है, अब ये फाइनल आंसर है. अब इसको हम इसको डेसिमल में ले सकते हैं, बराबर है कि नहीं. तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, पर देखो 1 का भाग जाएगा, नेगेटिव साइन है ही, और आप डिवीजन करो आसानी से मिल जाएगा आपको. a इक्वल टू -1.11, उसके बाद आएगा डिजिट, बाकी के डिजिट छोड़ दो, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and therefore this will be the acceleration. Now here see the acceleration is negative, therefore it is referred as now retardation. Therefore retardation of the bus is 1.11 मीटर पर सेकंड. हमने रिटार्डेशन कहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखने की आवश्यकता नहीं, ये नेगेटिव आया मतलब वो रिटार्डेशन है. यहाँ पे वर्ड यदि रिटार्डेशन का है, therefore रिटार्डेशन ऑफ बस इज 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, समझ में. तो दिस इज ऑल अबाउट दी two terms, one that is the velocity and another acceleration. ठीक है, तो once again we can recall in short what is velocity. Velocity is defined as displacement per unit time. ठीक है, velocity is a vector quantity. How acceleration is defined? Acceleration is nothing but it is a rate of change of velocity, बराबर है कि नहीं. तो फार्मूला इज a is equal to v minus u upon t. एक्सेलरेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में निगेटिव और एक्सेलरेशन में जीरो. ठीक है, एंड टू चेक द फार्मूला वी हैव सीन इन द एग्जांपल. ओके, तो यू ट्राई मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, थैंक यू.